پاکستان اور آئی ایم ایف حکام کے درمیان مذاکرات کا نیا دور۔ آئی ایم ایف مشن 30 محکموں کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے مذاکرات کرے گا۔ حکام وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، ایف بی آر سے مذاکرات کریں گے۔ آئی ایم ایف مشن آڈیٹر جنرل، نیب، ایف آئی اے، اوگرا اور دیگر حکام سے بھی مذاکرات کرے گا۔ آئی ایم ایف کا یہ وفد بینکنگ سیکٹر اور کنسٹرکشن کے شعبے میں مسابقت کا بھی جائزہ لے گا۔ امریکہ پاکستان کا تجارتی شراکت دار ہے، امریکی ٹیرف کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی نیوز کانفرنس، کہا آئی ایم ایف بورڈ منظوری کے بعد $1 ارب مل جائیں گے۔ ہم نے آئی ایم ایف کے تمام بینچ مارکس پورے کیے، یہ پاکستان کا پروگرام ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ملک میں معاشی استحکام آ چکا، معیشت درست سمت میں گامزن ہے، معاشی استحکام کو اب پائیدار معاشی استحکام میں بدلنا ہے، ترسیلات کو $36 ارب تک لے کر جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی بجلی کی قیمتوں میں کمی پر عوام کو مبارکباد، کہا بجلی کی قیمتوں میں حالیہ کمی سے مہنگائی اور کم ہوگی، ملک کی معیشت میں بہتری سے عام آدمی کی زندگی میں بہتری آ رہی ہے۔ نواز شریف نے سیکرٹری جنرل احسن اقبال کو پارٹی کے صوبائی سطح پر اجلاس بلا کر عوام کے ریلیف کی حکومتی اقدامات کی تحسین کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے حافظ نعیم الرحمان کا ٹیلی فونک رابطہ۔ حافظ نعیم الرحمان نے بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مسئلہ فلسطینیوں پر عالمی قوتوں کی خاموشی کا اظہار تشویش، فلسطینیوں پر صہیونی جبر کے خلاف بین الاقوامی فورم پر آواز اٹھانے کی ضرورت پر زور۔ شہباز شریف کا کہنا ہے مشکلات کے باوجود عوامی ریلیف کو ترجیح دی اور مشن جاری رکھیں گے، انشاءاللہ ملک کی ترقی کا سفر جاری رہے گا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں 13 سال بعد مثبت پیش رفت، پاک بنگلہ دیش دو طرفہ سیاسی مشاورتی اجلاس بلانے کی تجویز۔ مشاورتی اجلاس 17 اپریل کو ڈھاکہ میں منعقد ہوگا۔ پاکستان کی نمائندگی سیکرٹری جنرل آمنہ بلوچ کریں گی۔ ثقافتی، معاشی اور تعلیمی تعاون بڑھانے پر بات چیت کی جائے گی۔ مشاورتی اجلاس کے بعد نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار 22 سے 24 اپریل تک بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے۔ گیند گھومی نہ ہی بلہ چلا، T20 کے بعد ون ڈے سیریز میں بھی شاہینوں کو بدترین شکست۔ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو ون ڈے سیریز میں وائٹ واش کر دیا۔ تیسرے اور آخری ون ڈے میچ میں قومی ٹیم کی بیٹنگ لائن بری طرح لڑکھڑا گئی، کیویز نے پاکستان کو 43 رن سے ہرا دیا۔ گرین شرٹس 265 رنز کے جواب میں 221 رنز بنا کر آؤٹ، بابر اعظم 50، محمد رضوان 37 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بارش کے باعث میچ کو 42 اوورز تک محدود کیا گیا۔ نیوزی لینڈ نے ون ڈے سیریز 3-0 سے اپنے نام کر لی۔ نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز ہمارے لیے مشکل تھی، سیریز میں مثبت یہ ہوا کہ بابر اعظم نے رنز کیے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان محمد رضوان کی میڈیا سے گفتگو، کہا نیوزی لینڈ نے ہر شعبے میں ہم سے اچھا کھیلا، نیوزی لینڈ نے ایشین کنڈیشنز میں بھی اچھا پرفارم کیا تھا، اس سیریز میں بھی اچھی کرکٹ کھیلی، PSL ہونے جا رہی ہے، امید ہے کھلاڑی عمدہ پرفارمنس دیں گے۔ نیوزی لینڈ میں غیر متوقع واقعہ، پاکستان نیوزی لینڈ کے درمیان ایک روزہ سیریز کے آخری میچ میں گراؤنڈ میں اچانک لائٹس بند ہو گئیں۔ لائٹ آف ہونے کی وجہ سے میچ روکنا پڑا، لائٹ جاتے ہی گراؤنڈ اندھیرے میں ڈوب گیا، لیکن چند لمحوں بعد لائٹس دوبارہ بحال کر دی گئیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے پانی کے مسئلے پر سیاست کو افسوسناک قرار دے دیا، کہتی ہیں کہ بلاول بھٹو کو جلسوں میں کھڑے ہو کر مسئلہ حل کرنے کے بجائے ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو کو بیٹھ کر وفاق کے سامنے اپنی باتیں رکھنی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف چند دن میں ایک اور خوشخبری سنائیں گے۔ اب پاکستان میں خوشخبریوں کا موسم شروع ہو گیا۔ اسما بخاری چاہتی ہوں گی نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ٹکراؤ آئے، ہو سکتا ہے اسما بخاری نے جان بوجھ کر بیان دیا ہو، یہ درست نہیں، وزیر اطلاعات پنجاب ایسے بیانات دیں۔ وزیر اطلاعات سے شرجیل میمن نے اسما بخاری کو آڑے ہاتھ لیا، بولے محترمہ آپ نے آئین پڑھا ہے یا نہیں، آپ کا اتنا تجربہ نہیں، ہم اصولوں پر سیاست کرتے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کسی صورت کینالز کو نہیں بننے دیا جائے گا، پنجاب حکومت اب تک واضح نہ کر سکی کہ پانی کہاں سے آئے گا۔
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का निजी अस्पताल में इलाज जारी। अस्पताल इंतजामिया का कहना है सदर मुमलिकत की तबीयत बतदरीज बेहतर हो रही है। सदर जरदारी से ताहाल मुलाकातों पर पाबंदी बरकरार। अहले खाना को इलाज से मुतल्लिक मुकम्मल आगाही फराम की जा रही है। अहले खाना आसिफ जरदारी और डॉक्टर से राबिते में है। सदर मुमलिकत की तबीयत काफ़ी बेहतर है। इनकी सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया गया। कराची में आसिफ जरदारी के टेस्ट हुए जिनसे पता चला कोरोना हो गया। डॉक्टर आसिम हुसैन की सदर आसिफ जरदारी की सेहत से मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग। कहते हैं मुखालिफिन बीमारी को सियासत से जोड़ देते हैं, परेशानी की कोई बात नहीं। सदर मुमलिकत बिल्कुल फिट हैं, 1 या 2 रोज में अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। वफाकी हुकूमत ने लाहौर की 10 एहतिसाब अदालतों से 5 एहतिसाब अदालतों को खत्म कर दिया। वजारत कानून ने एहतिसाब अदालतें खत्म करने का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके मुताबिक खत्म होने वाली अदालतों के अमले को ट्रिब्यूनल्स और दीगर खुसूसी अदालतों में जम कर दिया गया। एहतिसाब अदालत नंबर 1 लाहौर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिब्यूनल मुल्तान में तब्दील। एहतिसाब अदालत नंबर 3 लाहौर को खुसूसी अदालत बराए कस्टम टैक्सेशन मुल्तान में तब्दील कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने सूबे में नए सहूलत बाजार कायम करने की मंजूरी दे दी। 13 नए सहूलत बाजारों की ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट्स जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अगस्त की डेडलाइन मुकर्रर। प्रोजेक्ट्स के तहत बोरेवाला, कबीरवाला, सांगला, जलालपुर में सहूलत बाजार बनेंगे। बहावलपुर, अटक, मरी में भी इजाफी सहूलत बाजार कायम करने का उसूली फैसला। वज़ीर आला ने ज़रई इंतजामिया को सहूलत बाजारों के लिए अराज़ी मुख्तस करने की हिदायत कर दी। हुकूमत ने हर वादा पूरा किया। मुआशी इस्तेहकाम से ही मुल्क मुस्तहकम होते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि हमें तामीरी सियासत की तरफ जाना चाहिए। हम गालिब गलोच की नहीं बल्कि तरक्की की सियासत पर यकीन रखते हैं। वफाकी हुकूमत ने रमज़ान पैकेज के तहत 40 लाख मुस्तहिक अफराद को माली मदद फराहम की। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से अलग माली ताउन फराहम किया गया। हम सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा लॉन्ग मार्च के हवाले से सिक्योरिटी खदशात थे। रेड जोन को यरगमाल बनाने की इजाज़त पहले दी ना अब दी जाएगी। खिलाफ वर्जी पर कानून अपना रास्ता लेगा। सूबाई हुकूमत की कोशिश है मुज़ाकरात से मसला हल हो। बानी पीटीआई की 9 मई के मुकदमात में जमानत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 10 अप्रैल को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी, जस्टिस तारिक सलीम शेख शामिल। स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स दलाल देने के लिए तलब। बानी पीटीआई ने जिना हाउस, अस्करी टावर, थाना शादमान, जलाओ घेराव और 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें दायर की। तहरीक इंसाफ की हुकूमत पाकिस्तान की तारीखी करप्ट तरीन हुकूमत साबित हुई। गंडापुर हुकूमत ने करप्शन के साथ पर रिकॉर्ड तोड़ डाले। अली अमीन बताएं अब ईट इन्हें मारे जाए या बानी पीटीआई को। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा इख्तियार वली खान ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली गंडापुर के बयान पर रद्द अमल दिया। कहा तहरीक इंसाफ जनरल बाजवा और बैकडोर साजिशों के जरिए हुकूमत में आई थी। बानी पीटीआई आज भी किसी चोर दरवाजे की तलाश में एस्टैब्लिशमेंट से बात करने के लिए मिन्नतें कर रहा है। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात की बातें खुद कलामी है। इनसे कोई बात नहीं कर रहा, ये अपने आप से बातें कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तल्लाल चौधरी की गुफ्तगू। कहते हैं मुज़ाकरात उसी पार्लियामेंट में हो गए जहां से मुज़ाकरात तोड़ कर निकले थे। एनएफसी में विफाक ने खैबर पख्तूनख्वा का उसके हिस्से से ज्यादा पैसे दिए। अफगानिस्तान के साथ पॉलिसी पीटीआई की नहीं पाकिस्तान की चलेगी। गवर्नर सिंध कामरान किशोरी कार हादसे में जाँ बहक होने वाले नज़र अब्बास के घर पहुंच गए। अहल खाना से मुलाकात। हादसे में जाँ बहक नज़र अब्बास की बेटियों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान। कहा 23 जनवरी से लेकर अब तक ड्राइवर के गिरफ्तार न होने पर अफसोस है। मुतासरा खानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। गवर्नर सिंध ने इस मौके पर नज़र अब्बास के तीनों बच्चों के तालीमी अखराजात उठाने का ऐलान करते हुए कहा कि ये बच्चियां 12 साल तक इंग्लिश मीडियम में तालीम हासिल करेंगी। इसके अलावा मुतासरा खानदान को 80 गज का प्लॉट भी दिया जाएगा। कराची के इलाके ईसा नगरी के करीब ट्रैफिक हादसा। ट्रॉलर और गाड़ी में टक्कर के बाद
खातून ने ड्राइवर पर गोलियां चला दी। ड्राइवर ट्रेलर से उतरकर भागकर पुलिस के पीछे छुप गया। पुलिस ने खातून और ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मतन के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर और खातून दोनों गफलत और लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे। पुलिस का बताना है कि खातून अलीशा मीर के पास असलहा रखने का लाइसेंस था, लेकिन वो एक्सपायर हो चुका था। शारे फैसल पर गाड़ी की टक्कर से मियां बीबी की हलाकत का केस, मुलजिम की उम्र का तयन ना हो सका। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम अनीक को अदालत में पेश किया। अदालत ने सवाल किया, मुलजिम की उम्र के तयन की रिपोर्ट कहाँ है? तफ्तीशी अफसर ने बताया, मुलजिम को अस्पताल ले गए थे, लेकिन ईद की छुट्टियों की वजह से रिपोर्ट नहीं मिल सकी। अदालत ने मुलजिम अनीक को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। आइंदा समाअत पर उम्र के तयन से मुतालिक रिपोर्ट चालान तलब। वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का कराची में बढ़ते हादसात पर इज़हार तशवीश। सिंध हुकूमत से ट्रैफिक कवानीन की सख्त करने और अमल दरामद करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हादसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 1 करोड़ और जख्मियों को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुस्तफा कमाल का कराची में के इलेक्ट्रिक की मोनोपोली पर तशवीश का इजहार। बोले के इलेक्ट्रिक के अलावा कराची में कोई ऑप्शन नहीं, शहर में कोई मुतबादिल होना चाहिए ताकि सर्विस पसंद ना आए तो दूसरी सर्विस ली जा सके। पंजाब में नए कार वॉश स्टेशन पर पाबंदी आयद। महकमे माहौलियात ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब में नए कार सर्विस स्टेशन बनाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान पीनल कोड के तहत कार्रवाई की जाएगी। महकमे माहौलियात के मुताबिक पंजाब में पानी की किल्लत मुमकिन खुश्क साली के पेश नज़र फैसला किया गया है। ईद के रोज कराची के इलाके डिफेंस में शहरी को गोली मारकर कत्ल करने वाले डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। डीआईजी सऊद सैयद असद रजा के मुताबिक डिफेंस CR रोड पर पुलिस मुकाबले में दोनों मुल्जिमान को जख्मी हालत में हिरासत में लिया गया। दोनों मुल्जिमान DH में तूबा मस्जिद के करीब अमीर सुल्तान के हालिया कत्ल में मुलव्विस थे। तीसरा साथी कासिम उर्फ मुन्ना अभी तक मफरूर है, तलाश जारी है। पेशावर हैदराबाद में नौजवान के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिला मकतूल के मंगेतर निकली। पुलिस ने मकतूल के मंगेतर और इसके दोस्त मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल इब्रारुल्लाह की शादी 6 अप्रैल को तय थी। लड़की इब्रार से शादी नहीं करना चाहती थी। दोस्त के साथ मिलकर इसे कत्ल करवा दिया। 27 मार्च को हैदराबाद में मकतूल इब्रार की लाश बरामद हुई। पाकिस्तान का दहशतगर्दों के ज़ेरे कब्जा हथियारों के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का और या फार्मूला इजलास। पाकिस्तान ने कलअदम TTP समेत दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ गैर कानूनी हथियारों के इस्तेमाल पर तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तानी मिशन के काउंसलर सैयद आतिफ रजा ने कहा कि दहशतगर्द ग्रुप्स के पास अफगानिस्तान में छोड़े गए अरबों डॉलर मालियत के गैर कानूनी हथियार मौजूद हैं। दहशतगर्द तंजीमों को मुखालिफ मुल्क की बैरूनी इमदाद और माली मुआवनत भी हासिल है। पाकिस्तान का आलमी शराकतदारों से दहशतगर्द गिरोहों की हथियारों तक रसाई रोकने का मुतालबा। पाकिस्तान 4 साल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब। पाकिस्तान UN मिशन के आलामी के मुताबिक कमीशन बराए मुनशियात का रुकन मुंतखब होना पाकिस्तान पर एतमाद और भरोसा जाहिर करता है। पाकिस्तान आलमी इंसदाद मुनशियात की कोशिशों में अपना मौसर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने आलमी मुनशियात पॉलिसी से मुतालिक मुबाहिसों में हमेशा फ़ाल तामीरी किरदार अदा किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बेहतर होगा ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज तर अमल है। ईरान मसालिहतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था, मगर शायद अब ऐसा नहीं। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अरब मीडिया ने ईरान और अमरीका को बिला वास्ता बातचीत पर इत्तफाक करने का दावा कर दिया। अगले 3 हफ्तों में बातचीत शुरू होने का इम्कान। इसराइल जंगी जुनून में मुब्तला अहले गजा पर इसराइली मज़ालिम का सिलसिला थम न सका। हमलों में मज़ीद 7 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली हमलों में शहीद होने वालों में 17 फ़लस्तीनियों का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है। शुमाली गजा में फ़लस्तीनी पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहादतों की मजमूई तादाद 50,669 हो गई।
रूस का यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर मिसाइल हमला, 9 बच्चों समेत 16 अफराद हलाक हो गए। हमले में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार, कहा बच्चों के खेल के मैदान और छोटी गलियां रूसी हमले में निशाना बनाई गईं। ऐसे हमले इत्तफाकिया नहीं हो सकते। रूस जानता है ये तवानाई के तंसीबात हैं। PSL के 10वें एडिशन में नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए मैच ऑफिशियल्स टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया। टेक्नोलॉजी से मैच में शफाफियत और अंपायर को फैसलों में मदद मिलेगी। नो बॉल, DRS, अंपायर्स की लाइव कम्युनिकेशन, मुख्तलिफ जावियों से रीप्ले की सहूलत भी मैसर होगी। नई टेक्नोलॉजी की मदद से मैच इनिंग्स का वक्त भी बराह रास्त देखा जा सकेगा। PSL के 10वें एडिशन का आगाज 11 अप्रैल से होगा। PCB का बड़ा इक़दाम, PSL में पहली बार मुकम्मल उर्दू कमेंट्री की जाएगी। CEO सलमान नसीर कहते हैं कि कौमी ज़बान में लीग मैचों के एक्शन और जोश व खरोश से शायकीन को लुत्फ़ होने का मौका मिलेगा। इक़दाम का मकसद लाखों शायकीन के साथ ताल्लुक़ को मज़ीद गहरा करना है। अंग्रेज़ी और उर्दू कमेंट्री पैनल्स का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। सूरज ने आंखें दिखाना शुरू कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में मौसम गर्म। तुर्बत 42, नौकंडी 40, कराची में 39 डिग्री रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक 2 से 3 रोज में गर्मी की शिद्दत में इजाफा मुतवक्किल। और ताजदारे हरम हो निगाहे करम जैसी मुतअद्दिद मारूफ कव्वालियों के सामीन को झूमने पर मजबूर कर देने वाले मारूफ वर्सटाइल कव्वाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 31 बरस बीत गए। वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में कव्वाली सुनने वालों में बेपनाह मकबूल थे। गुलाम फरीद साबरी ने दुनिया के बेशतर ममालिक में भी अपनी आवाज़ का जादू जगाया।